السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ اور آج کا ویلاگ ایک بڑے سفارتی ایونٹ کے اوپر ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یین کا 18 سے 19 اگست 2025 کو دورہ بھارت۔ یہ دورہ صرف چین اور انڈیا کی کہانی نہیں بلکہ پاکستان، گلوبل ساؤتھ اور عالمی سیاست پر اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، اور انہی اثرات کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ پروین ثانی ہے، ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں انڈیا کے، بہت اچھا بڑا متوازن قسم کا ان کا تجزیہ ہوتا ہے، میں اکثر ان سے استفادہ بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے اسے ٹیکٹیکل ریسیٹ کہا ہے، لیکن کیا یہ واقعی نئی شروعات ہے انڈیا کے ساتھ چائنا کی؟ آئیے اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور نوجوان سفارتکاری اور امن کی اہمیت جانیں، اپنے کرنٹ افیئر نالج میں اضافہ کریں، مختلف جابز کے لیے جو وہ انٹرویو دیتے ہیں اس کے لیے تیاری کریں، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ میں رائے بھی دیں۔ تو آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کا بھارت کا حالیہ سفر ایک ٹیکٹیکل ریسیٹ تھا یا نہیں تھا، یعنی ایک حکمت عملی کو دوبارہ ترتیب دینے کی ایک کوشش تھی۔ کیا یہ ایک سفارتی موڑ ہے یا سرحدی کشیدگی میں کچھ کمی ہوگی اس سے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وانگ یی نے 18 اور 19 اگست کو یہ دورہ کیا ہے انڈیا کا، اور انہوں نے انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوول، ان سے ملاقات کی، پھر وزیر خارجہ جے شنکر سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اسی دوران ان کی ملاقات وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ہوئی۔ بات چیت کا مقصد یہ تھا کہ سرحدی تنازعات کو کس طرح حل کیا جائے، تجارت کو کیسے بڑھایا جائے، اور برکس کے علاوہ ایس سی او جیسے پلیٹ فارم جو ہیں ان پر تعاون کو کیسے مزید بڑھایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ کن سفارتی موڑ تھا دونوں ملکوں کی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اپنے پرانے جو ہم اس سے پہلے آپ کے پاس جو ہم مختلف ویلاگس کرتے رہے ہیں، تو ان میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ چین جو ہے وہ بھارت کو آہستہ آہستہ گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ چین جو اپنی سفارتی اگر ہم اس کو سرگرمیوں کو چائنا کے دیکھتے ہیں، تو چائنا بہت لمبے عرصے کی پلاننگ کر کے چلتا ہے۔ بہرحال بھارت کا چین کی جانب جو جھکاؤ ہے اور چین کا مثبت رویہ اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ بھارت اور چین دونوں نے اس بات کو دکھایا ہے کہ وہ عملی اقدامات پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں ایک یہاں پہ حوالہ بھی دوں گا پروین ثانی صاحب کا، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی یہ بات کی کہ یہ دورہ بیسیکلی ٹیکٹیکل ریسیٹ ہے بقول پروین ثانی صاحب کے۔ بہرحال کیونکہ چین اور انڈیا گلوبل ساؤتھ کے بڑے ممالک ہیں، دونوں مل کر امریکی پالیسیوں، اسپیشلی جو ٹرمپ نے ٹیرف کے حوالے سے مختلف قسم کی جو پابندیاں لگائی ہیں مختلف ممالک کے اوپر، اس میں چائنا بھی اس کا شکار ہوا ہے، بھارت تو خیر بہت زیادہ اس کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے برکس اور ایس سی او کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بات کی چیت کی گئی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے پاکستان سمیت بہت سارے دوسرے ترقی جو ممالک ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ سبق ہمیں اس بات سے یہ بھی ملتا ہے کہ اتحاد سے ہی ہم سب مل کر اپنے مفادات کی حفاظت کر سکتے ہیں، لڑ کر کچھ نہیں مل رہا۔ یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اگر وہ سمجھے تو۔ اس دورہ میں بھارت کو ٹیکٹیکل ریسیٹ مقصود تھا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ٹیکٹیکل ریسیٹ کیا گیا، لیکن ٹیکٹیکل ریسیٹ ہوا نہیں ہے، ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اصل میں پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ٹیکٹیکل ریسیٹ سے مراد کیا ہے۔ ٹیکٹیکل ریسیٹ سے مراد یہ ہے کہ تعلقات میں جو پہلے رکاوٹیں تھیں، ان رکاوٹوں کو آپ مکمل طور پہ تو ختم نہیں کر سکتے، ہاں کچھ رکاوٹوں کو جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ ایک دفعہ ہم رواں ہو جائیں، ایک دفعہ ہم چلنا شروع کریں، تعلقات کو بہتری کی جانب لے کر تو چلیں۔ اس چیز کو ٹیکٹیکل ریسیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس حوالے سے سرحدی تناؤ میں جو کمی کی بات کی گئی ہے، اور خصوصاً انڈیا کا تو یہ تھا کہ LAC جو ہے، جو ان کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے جو چائنا اور بھارت کے درمیان ہے، اس پر کسی طریقے سے چائنا کی فوج واپس اپنی جگہ پہ چلی جائے، اور جو علاقہ خصوصاً گلوان انہوں نے حاصل کیا ہے انڈیا کا،
बकौल इंडिया के वो वापस कर दें। फिर वापसी के बाद दोनों ममालिक जो हैं उनकी फौजें मुश्तरका गश्त करें सरहदों पर। लेकिन आप जानते हैं कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इस पर बातचीत तो हुई है, लेकिन इसके ऊपर कोई मुस्बत पहलू हमें नजर नहीं आया। बहरहाल सफरी सहूलियत में नरमी जरूर हुई है। बराह रास्त परवाजें जो हैं वो बहाल करने के ऊपर बात हुई है और उसके ऊपर ये सिलसिला चल जाएगा। सहाफ़ियों के वीज़े हो गए, तजारती और सकाफती जो रवाबित हैं उनमें आसानी, उनको वफूद का तबादला इस हवाले से। फिर भारत की नज़र में जैसे मैंने ये कहा कि ये टैक्टिकल रिसर्च दरअसल महफूज दोस्ती की जानिब उनका पहला कदम था, जहाँ सरहदी अमन हो, इक़्तिसादी ताल्लुक को दोबारा सेट किया जाए बगैर किसी बड़ी इनकलाबी जो तब्दीली के। यानी एक हिकमत अमली जो है जिसको हम टैक्टिकल कहते हैं वो इख्तियार की जाए, ना कि एक तवील मुद्दती तब्दीली की जानिब जाया जाए जिसे हम स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल कहते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये टैक्टिकल रिसर्च दरअसल महफूज दोस्ती के लिए भारत अपनी तरफ से एक पहला कदम उठाना चाहता है, जहां सरहदी अमन और इक़्तिसादी ताल्लुक को दोबारा सेट किया जाए बगैर किसी बड़ी इनकलाबी तब्दीली के। यानी एक ऐसी हिकमत अमली हो जो कि टैक्टिकल नोयत की हो, ना कि तवील मुद्दती यानी स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल। अच्छा, यहाँ देखने में आया कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में पेचीदगियाँ अपनी जगह अब भी कायम है, उसमें वो कम होने का तो नाम नहीं ले रही हैं, और ये कम से कम हमें मोदी के होते हुए तो नजर भी नहीं आ रही है ये ठीक हो। क्योंकि मोदी का जो माइंडसेट है वो जीरो सम गेम वाला है। जीरो सम गेम से मुराद ये है कि या तो मुझे फायदा होगा या मुझे नुकसान होगा, दूसरे को ये फायदा देने के बिल्कुल भी हक में नहीं होते। जीरो सम गेम में धौंस, धमकी और पावर का इस्तेमाल करके लोग अपना काम चलाते हैं, और यही भारत जो है अपनी इस वक्त फजूल किस्म की अना के ऊपर अड़ा हुआ है। 2016 से लेकर आज तक चीन भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर एक खुशहाल रास्ते पर डालने की कोशिशों में मसरूफ है, और पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत जो है वो लाइन पर आ जाए और इस खित्ते को अमन और खुशहाली का जो है वो साथ जो है वो मुंह देखना नसीब हो। लेकिन भारतीय हिंदुत्व के झूठे सपने बीजेपी और आरएसएस को बिल्कुल भी चैन नहीं लेने दे रहे हैं। इंडिया का एक तो ये जोम है कि इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है और उसकी मीशत बहुत तगड़ी है, तो सब मुझे झुक कर मिले। ये जमाना गुजर गया, अब ताकत मीशत से आगे बढ़ गई है। चीन पर तो ये प्रेशर मुझे बिल्कुल बेअसर नजर आ रहा है। अमेरिका, यूरोप और रूस से धक्के खाने के बाद चीन से कुछ हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ इंडिया जो है, इस मीटिंग को या इस विजिट को जो वांग जी का है, वो शॉर्ट टर्म मकासद को हासिल करने के लिए अपनी सरतोड़ इन्होंने कोशिश की है। अच्छा, इस दौरान जब वांग जी ने ताइवान के हवाले से बात की तो भारत ने मैं ना मानो वाली रट बिल्कुल नहीं छोड़ी है। अपनी झूठी अना, झूठा फखर और फजूल किस्म के जो इनकी बयानबाजियां हैं उनसे फिर भी बाज नहीं आए। ना तो साउथ तिब्बत के ऊपर जो कि अरुणाचल प्रदेश है, ये स्टैंड स्टिल वहीं का वहीं मामला खड़ा है, ये झगड़ा बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ ताइवान पर भी जो चाइना है उसका ज़ाहिर है वन चाइना पॉलिसी का एक अपना मौकफ है, लेकिन भारत जो है वो ताइवान की सपोर्ट करने से बात नहीं आ रहा। यानी कि एक तरफ वो वाले काम जो है जिनसे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है चाइना को, वो करता है, और साथ में उसका ख्याल ये है कि चाइना जो है वो उसका हर मामले में साथ भी दे। फिर जैसे ही वांग जी जो है वो इंडिया से निकले हैं, अगले दिन ही अग्नि 5 का इंडिया ने वहाँ पर तजर्बा कर दिया। आज पाकिस्तान में मौजूद हैं वांग जी जो हैं, और आज उन्होंने जो अग्नि 5 का तजर्बा किया उससे क्या पैगाम दिया है? क्या ये अमन का पैगाम है? क्या ये ताल्लुकात को बेहतर बनाने का को प्रोग्राम? ऐसा तो मुझे नहीं नजर आता। अजीत डोवल जो इनके सलामती के मुशीर हैं, मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि वो और अजीत डोवल के अलावा जो जयशंकर हैं, इन दोनों ने जितना बीजेपी की हुकूमत को डाउन किया है और जितना भारत की रियासत को कमज़ोर किया है, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 78 सालों में किसी ने इसके करीब भी जाने की कोशिश की होगी। बहरहाल हमें यूं लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी जो चाइना इख्तियार करना चाहता है, जो इस्तेहकाम की हो, जो खुशहाली की हो, जो अमन की हो, इंडिया उस तरफ जाने का नाम नहीं ले रहा। चीन ने अलबत्ता एक
वादा ज़रूर किया है कि वो खाद के हवाले से, नायाब अनासर के हवाले से, और जो टनल मशीन्स हैं, टनल बोरिंग मशीन्स जो हैं, वो उनकी सप्लाई जो है वो बहाल कर देगा इंडिया को। ये 2020 के बाद, यानी कि 2020 में जो गिलवान की लड़ाई हुई थी और जिसमें चाइना ने इंडिया का काफ़ी सारा इलाका कब्जा कर लिया था, ये उसके बाद एक काफ़ी बड़ी पेशरफ्त है। इससे हमें ये सबक भी मिलता है इस बात से जो चाइना की हमें ये बात है कि बातचीत से तनाज़ात हल होते हैं, जंग से हल नहीं होते। लेकिन ये बात अभी तक इंडिया को समझ नहीं आ रही है। अगर हम पाकिस्तान पर असरात को देखें तो पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर दोस्त है। वांग यी ने इंडिया के बाद ये 20 से 22 का दौरा पाकिस्तान का कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के साथ इनकी मुलाकात भी हुई है। ये मुलाकातें और इनका ये दौरा जो है, ये पाकिस्तान को अपना आइंदा मुस्तकबिल के लिए लाए अमल तय करने में काफ़ी हेल्प करेगा। चीन इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ये कहता है कि मैं पाकिस्तान की कीमत के ऊपर आपके साथ ताल्लुकात नहीं डेवलप करूँगा, और ये बात इंडिया को हज़म नहीं होती है। बहरहाल एक बात तो तयशुदा है कि अपने मफादात की हिफाजत के लिए सफारती तवाज़ुन जो है उसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। दोस्तों, ये व्लॉग हमें ये सिखा रहा है कि सफारतकारी से अमन और तरक्की भी मुमकिन है। गलत फॉलोइंग से बचें, अपने बच्चों को बचाएं। सिर्फ मस्बत और अमन पसंद जो लीडर्स हैं उनको फॉलो करें, सियासत के हवाले से, दीन के हवाले से, और इसी तरह यूट्यूब के हवाले से भी। और तालीम और आगाही जो है ये अपने बच्चों को ज़रूर दें। अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी को पढ़ें, इसको समझें, तारीख को ज़रा देखें, तारीख क्या कहती है आपको। तारीख देखें। अगर हम वांग यी का दौरा हमें ये भी उम्मीद देता है कि चीन, पाकिस्तान, इंडिया मिलकर आने वाले वक्त में इस खित्ते में जो ग्लोबल साउथ है इसमें अमन ला सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। इन कमेंट में आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं वांग यी, तो इसके नताइज क्या निकलेंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।